सिद्धार्थ भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप इस फ़िल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग के फ़ील्ड में कब और कैसे आए? मैं सर बेसिकल पहले सिलाई का काम करना सर, स्टिचिंग और फिल्मां ਦੇ ਡਰੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੈਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਰ। ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਏਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਓਏ ਅੱਡੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਗੈਟਅਪ ज़रा बोल के दिखाइएगा। ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਓਏ ਅੱਡੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂ। अलियास कश्मीरी नज़र आया नाज़रीन, मुझे इनकी ये इस एक्ट में अलियास कश्मीरी की झलक नज़र आई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं एक एक्टर के साथ बैठा हूँ जो कि पाकिस्तानी फ़िल्म के जो उभरता हुआ फ़नकार हैं, उभरते हुए सितारे हैं। पीछे आप देख रहे हैं बाबर भट्ट के पोस्टर के, मैं बिल्कुल आगे बैठा हूँ। पीछे आप इसकी तस्वीर भी देखते होंगे। मेरे साथ बैठे हैं जी शहजाद मुगल साहब। बाबर भट्ट इनकी फ़िल्म आ रही है, उसका ये टाइटल रोल कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस फील्ड में कब और कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या हाल है सर खैरियत है? ठीक हैं आप? जी? बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग के फील्ड में कब और कैसे आए? मैं सर बेसिकल पहले सिलाई का काम करना सर, स्टिचिंग और फिल्मां ਦੇ ਡਰੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੈਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਰ। ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਏਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। नाजरीन, मुझे तो ये एक फिल्म आई थी इंडियन, स्वर्ग, गोविंदा की। ये तो वैसे सीन मुझे लग रहा है कि जब वो एक फनकार उसमें दिखाया है कि वो डायलॉग जो है वो भूल जाता है, तो ऐसे ही गोविंदा साहब पीछे बोलते, ये तो मुझे वही सीन लग रहा है। क्यों जी शाह साहब? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਓਏ ਅੱਡੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਗੈਟਅਪ जरा बोल के दिखाइएगा। ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਓਏ ਅੱਡੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂ। अलियास कश्मीरी नज़र आया नाज़रीन, मुझे इनकी ये इस एक्ट में अलियास कश्मीरी की झलक नज़र आई है मुझे। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਹਿਦਾ ਫਿਰ ਸਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਓਏ ਓ ਮੇਰੀ ਹਸੀਅਤ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫੇਂ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਇਹ क्या बात है। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸੈਟਅਪ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। शहजाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने टेलरिंग का काम जो है वो कितने अरसा किया आप? मैंने सर मैं काफ़ी यानी कि कम से कम मैं 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਡਲਿੰਗ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਂਸ। ਟੀਪੀ ਗੋਲਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 300-350 ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ।
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤ होई तो फिर मैं आगे चल पाया। ज़ाहिर है नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि हर कामयाब मर्द के सामने, कामयाब इंसान के सामने एक औरत का बैकअप होता है, और शहजाद भाई के बैकअप पे सुहेल भट्ट साहब है। ऐसे ही है जी? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह ही, बिल्कुल। माशाल्लाह जी, सलामत रहें सुहेल भट्ट साहब, सलामत रहें जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शहजाद साहब कि ये जो आपकी बाबर भट्ट फिल्म आ रही है, ये इसकी कितनी रिकॉर्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और कितनी जो है वो बाकी है? इसकी थोड़ी सी स्टोरी नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सर अपना सुहेल भट्ट साहब होरानी इन्हां दे डायरैक्टर भी ने, और माशाल्लाह कहानी भी उन्होंने चंडी खान साहब को लिखवाई है, और ए अद्धी 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 बन गई, हाफ बन हो गई है। और इंशाल्लाह ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸੁੱਚੇ ਜੱਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ। यानी कि सुच्चा भट्ट दूसरी वीडियो, सुच्चा जट दूसरी फिल्म है। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ 2 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 6-7 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। किस किस के साथ आपने काम किया? ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੁਮਰ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ। शफकत चीमा साहब ने तो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उन्होंने ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। शाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि वो गंडासे वाली वो अभी भी चल रही है? वो क्यों इस तरह लोग दिखाते हैं पर्दे पे कि वो इतने लाशें, इतनी ये खून खराबा? नहीं सर, वो बस कर गए राही साहब, ना राही दोबारा दुनिया ते आ सकता है तो ना कोई राही बन सकता है। ये हुण वो चीज़ नहीं है, हुण चेंजिंग है। ठीक है, हुण सिर्फ कहानी है, जज्बाती के मतलब सारे चल रहे हैं, मगर काम नूं समझण वाला कोई कोई है। हर चीज़ मुनाफकत बहुत ही है, यानी कि जिहड़ा काम अगले को लैना है वो लैके ते बाद च जैलस होकर उन्होंने कट देंदे ने। पूरी वजह की? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। अगर मैं अच्छा काम किया है तो तुसी हल्का किया तो तुसी उन्होंने कहता जी इन्हू विचों। यानी कि आप कह रहे हैं नाज़रीन, आप भी समझ गए होंगे कि हर फील्ड में कोई ना कोई टांग खींचने वाला लाजमी होता है, क्योंकि ऐसी है। बिल्कुल इस तरह ही जी, बिल्कुल। क्यों होता है ऐसे? देखो पता की, देखो एक प्रोड्यूसर एक ज़हन रख के आंदा है भी मैं चीज़ बनावा, तैयार करा, ਉਹਦਾ बजट मतलब कि थोड़ा है, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ में इत्तेफाक करन और मुखलस हो जान, तो इस फिल्म इंडस्ट्री में फिर अच्छा एक रूप मिल सकता, अच्छा रंग मिल सकता है। शराज भाई, मेरे देखने वालों को आप बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह अल्लाह दी रहमत है जी, माशाल्लाह मेरे 5 बेटे ने। माशाल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, मेरा एक बेटा है इस्लान, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸਲਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਲ ਹੈ, 2 ਛੋਟੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ है। ठीक है, वो कहते तुसी करो, असी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा भी आप कोई शौक रखते हैं, कोई कारोबार है आपका? सर इस तो अलावा कारोबार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਸਿਲਾਈ ਦਾ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ
रेडीमेड सूट सिलाई ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ। अच्छा शाह साहब, आखिर में मुझे मेरे व्यूज़ को बताइएगा कि एक एक्टर जो है, हीरो हो या विलन हो, उसकी मुआवजा जो होता है वो कितना होता है? ਸਰ ਕभी ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਓਕੇ कर लेवे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मैं लालच नहीं करता। यानी कि किचन, आपके बाल बच्चे, घरेलू जो मसले मसाइल है वो अच्छे चल रहे हैं? जी माशाल्लाह वो सारा ज़बरदस्त चल रहा है। और मेरा ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਨਮਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਿਰਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਘਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ भी हाँ जी तुसी बस हंसते खेड़ते चंगे लगते हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे और सलामत रखे। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी आने वाली जो मूवीज़ है कितनी है वो, उसके थोड़ा सा नाम बताएंगे? माशाल्लाह जी, बाबर भट्ट, सुच्चा और ये दो टाइटल रोल थे। उस तरह मेरी पहले आ चुकी है बटवीर, ठीक है, इश्तिहारी डोगर, कालू दा खड़ाक, इन्होंने सारे च मैं कर चुका। उन्होंने मैं विलन किया, इन्हें च मैं टाइटल कर रहा। इसमें आप टाइटल रोल कर? ये बस जिन्ना भी है ना सारा सुहेल भट्ट साहब की मेहरबानी है और उन्होंने कदमां सदका और मेरे माँ बाप दियाँ दुआवां ने मेरे नाल, जिन्हों दे मैं सारा कुछ कर रहा। और मेरे वालदैन, मेरे वालद दी, मेरी वालदा दी मेरे पीछे बहुत दुआवां ने, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, ये मेरे साथ अरसलान साहब बैठे हैं, शहजाद साहब के बेटे हैं, जो फिल्म सुच्चा में इनके बचपन का रोल कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये इस फील्ड में कैसे आए, कैसे शौक पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सनान साहब, जी सर। कैसे आए इस फील्ड में आप? इस फील्ड में सर मैं बार्बर का काम करता हूँ, तो ठीक है, इस फील्ड में पापा को देखकर मुझे भी शौक था कि मैं भी एक दिन ऐसा है कि पापा के जैसा बनूं। दोस्त वगैरह को बताता था, मेरे वाला साहब शाहनूर स्टूडियो में एक्टर हैं, वो बोलते थे कि यार आपके वाला साहब शाहनूर स्टूडियो में एक्टर है, आप भी रिप्लाई करो। मैंने बोला ठीक हो गया भाई, कोई बात नहीं। फिर वाला साहब को मैंने बोला कि अब्बू जी मुझे भी किसी मूवी में एक्टिंग का रोल दें। अब्बू ने मुझे बोला ठीक हो गया। पहले अम्मी के साथ बात की, अम्मी ने भी बोला इसे शौक है, इसे ले जाएं आप। भाइयों ने भी बोला, भाइयों के साथ भी बात की, जो उनसे सबसे बड़े भाई हैं, कोई भी बात हो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ कि भाई मेरा ये मसला है, ऐसे मैंने करना है, ये कर सकता हूँ। अगर उन्होंने बोल दिया ठीक है करना है तो कर लेना है, अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं करना तो वो काम नहीं करना। भाई को वो बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ना मूवियों में अब्बू जी के साथ जाना है काम पे। उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर तुझे शौक है तो अपना शौक पूरा कर ले। फिर अब्बू के साथ बात की, ये जो उनसे सुच्चा मूवी आई है, इसमें बचपन का अब्बू का रोल कर रहा हूँ। बचपन का रोल कर रहे हैं जी, वाला साहब का बचपन का रोल कर रहा हूँ। इसके अलावा कितनी मूवीज में आप काम कर रहे हैं? इसके अलावा मूवीज कोई भी मिले, किसी अभी शुरू किया था एक कौन सी फिल्म? मूवी तो कोई भी नहीं थी, वैसे गाना मॉडलिंग की है। जी। और इसके अलावा और भी कोई शौक रखते हो? बार्बिंग वो तो काम है ना, अभी वो कर रहे हो? अभी वो कर रहे हो काम? जी, बार्बर का कर रहा हूँ, ब्यूटिशियन का शौक है। इंशाल्लाह इस काम में आगे जाना है और इंशाल्लाह एक नाम बनाना है। एक्टिंग में आगे जाना है या उसमें दूसरी फील्ड में आगे जाना है? दोनों कामों में। जौन सा ब्यूटिशियन का काम ये तो मैंने अपने शौक से सीखा है। क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा अक्सर मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं और एक्टिंग की फील्ड के साथ उनका चोली दामन का साथ होता है, ऐसे ही है जी? जी। तो उसमें कहाँ तक आप जाना चाहते हैं? अपने फादर की जो है वो कैसे हेल्प? इसको पेंडू न्यूज़ में भी मैंने काफ़ी ड्रामे किए हैं ना, पेंडू न्यूज़ के भी। हाँ वो मैंने, हाँ गुलफान भाई के साथ मैंने ड्रामे काफ़ी मेरे चल रहे हैं यूट्यूब पे, पेंडू न्यूज़, और उसमें भी इसको मैं साथ सेटल करूँगा और उधर भी काम करूँगा। वो तो माशाल्लाह बड़े मज़ाहिया तर्ज के वो फनी वीडियो बनाते हैं। पेंडू न्यूज़ काफ़ी मेरे उनके साथ चल रहा है और काफ़ी ड्रामे चल रहे हैं मेरे उनके साथ, गुलफाम भाई के साथ। जी तो नाजरीन, ये थे मेरे साथ बाप और बेटा एक्टर
बाप और बेटा दोनों एक्टर हैं। इनकी बातें आपने सुनी, आपको इनके अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इनकी वीडियो सुच्चा और बाबर भट्ट को लाज़मी देखने सिनेमाघर में जाइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।